To all of you. Again, I am coming back to my channel Osit Government Tool Guru. Today, I will discuss KVS Principal Exam Administrative part. I will discuss exam conducted on 8th February 2023. In Administrative and Finance part, around 100 questions we are coming, and today I will discuss first 25 questions. So, my friends, please subscribe my channel, like my channel and share my channel so that you can get notification for upcoming videos. Clear? It is very important questions and already pattern is changed, and just those are fresh candidates. They must know the pattern of exam. So you see my WhatsApp number 8327782034. If you need PDF, then contact with me in my WhatsApp number, and my Telegram channel link is there. Also, you can get link in the video also. My Telegram channel link is t.me/BAPI2034. So please join my Telegram channel. If you need PDF, so in different administrative part and finance, so already I have covered, and all the videos already I have uploaded. And if you need PDF, then contact with me in this WhatsApp number. So now I am going to discuss first 25 questions of KVS Principal Exam conducted on 8th February 2023. First question you see, members of family include which of the following in the context of CCS Conduct Rules 1964? Okay, it is given options, two statements given: a wholly dependent son not residing with the employee, and a wholly dependent stepdaughter residing with the employee. Two statements given. So whether these family members included in the context of in the context of CCS Conduct Rules 1964 or not. Clear? So हम जानते हैं कि basically the wife or husband, as the case may be, of the government servant, whether residing with the government servant or not, but does not include a wife or husband, as the case may be, separated from the government servant by a decree or order of a competent court. So the wife or husband, basically it is included in the family, but if the wife or husband, if it is separated and it is declared by the competent court, then it is not included. The next one, son or daughter or stepson or stepdaughter of the government servant and wholly dependent on him. Okay, son or daughter or stepson or stepdaughter of the government servant and wholly dependent on him. Okay, तो आपको जो चाइल्ड लेना है बेसिकली सन डॉटर और स्टेपसन स्टेपडॉटर, बट होली दे डिपेंडेंट ऑन द employee. Next one, any other person related whether by blood or marriage, whether by blood relation or marriage relation to the government servant or to the government servant's wife or husband and wholly depend on the government servant. So three things you remember. One is the either husband or wife. Okay, but if the wife or husband is separated due to the order of the court, it is not included, but normally the wife or husband included. Next one, son or daughter or stepson or stepdaughter, but wholly dependent on the employee. Then any other, it means related whether by blood or marriage, okay, to the government servant, to the particular government servant, or to the government servant's wife or husband. दोनों का साइड में जो भी ब्लड रिलेशन है और जो भी मैरिटल रिलेशन है वो सब आ जाएंगे, एंड होली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट. तो ये दोनों करेक्ट है, एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो आंसर हो गया बोथ आई एंड आई. यहाँ पर इट इज गिवन ए होली डिपेंडेंट ऑन नॉट रिजाइडिंग विद द एम्प्लॉय. डिपेंडेंट, ये जरूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉय के साथ रिजाइड करेगा. होली डिपेंडेंट स्टेप डॉटर रिजाइडिंग विद द एम्प्लॉय. ठीक है, डिपेंडेंट दिया है अभी मैं बताया. तो आंसर इज बिट 3, बोथ आई एंड डबल आई. चलो क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is or are correct?
Okay, that type of questions coming, you see, just you detect the correct statement. An employee shall not communicate any official document to anyone to whom he is not authorized to communicate such document. ये करेक्ट है. आप देख लीजिए CCS कंडक्ट रूल्स 1964, आप देख लीजिए रूल 11, इसमें क्लियरली मेंशन है कि ओनली जिस गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑथराइज किया गया है कि वो जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है, मगर उसको ऑथराइजेशन मिला है. मगर ऐसा कुछ जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है एक एम्प्लॉय को ऑथराइजेशन नहीं दिया गया है, तो वो किसी के साथ उसको शेयर नहीं करेगा. ओके, तो शेयर करेगा तो वो मिसकंडक्ट में जाएगा और उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा. तो वही दिया है, एन एम्प्लॉय शैल नॉट कम्युनिकेट एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ओके, टू एनीवन टू हुम ही इज नॉट ऑथराइज्ड और कम्युनिकेट सच डॉक्यूमेंट. ऑथराइजेशन है अलग बात है, जिस एम्प्लॉय का ऑथराइजेशन है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को वो डिक्लेयर कर सकता है क्योंकि ऑथराइजेशन है, उसको ऑथराइजेशन दिया गया है. और जिस एम्प्लॉय के पास ऑथराइजेशन नहीं दिया गया है वो कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता. ये रूल 11 में है. हो गया. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट. वन कैन एसोसिएट विथ रेजिंग ऑफ फंड्स इवन इन परसुएशन ऑफ फिलान्थ्रोपिक पर्पजेस ओनली विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. कोई ऐसा फिलान्थ्रोपिक पर्पजेस के लिए आप कोई फंड रेज कर रहे हो मगर गवर्नमेंट से परमिशन लिया है. ये आप देख लीजिए रूल, आप सब्सक्रिप्शन में रूल 12 देख लीजिए, सीसीएस कंडक्ट रूल्स. ओके, सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 रूल 12 सब्सक्रिप्शन में है. तो यहां पर हम फंड रेज करेंगे कोई अच्छा पर्पज के लिए, बट आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. ये भी करेक्ट है. तो यहां पर एक्चुअली करेक्ट दिया है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ आई एंड आई. आंसर इज बिट 3. ठीक है, रूल भी बताया आपको. चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not correct? Which of the following is not correct in the context of a transaction with a person having official dealing with the employee? कोई भी ऑफिशियल ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन विथ ए पर्सन हैविंग ऑफिशियल डीलिंग विद द एम्प्लॉय. एक एम्प्लॉय के साथ ऑफिशियल डीलिंग है और वो पर्सन के साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. तो इसमें मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. इस केस में बेसिकली आपका किस व्यक्ति के साथ, सपोज you are having official dealing with a person, so without permission of the government you should not have make any type of transaction with him. मेरा समझ में आ रहा है? आप एक व्यक्ति के साथ, एक पर्सन के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, उसके साथ बिना गवर्नमेंट परमिशन से आप उसके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो. तो वही दिया है. तो यहां पर देखिए, नो इंटीमेशन इज नेसेसरी इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2 months बेसिक पे. ये इनकरेक्ट है क्योंकि मैं अभी बताया, कोई भी यहां पर दिया है जिस पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, तो परमिशन जरूरी है. विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, द कंसर्न एम्प्लॉई कैन नॉट मेक एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन विथ हिम और हर बिकॉज द एम्प्लॉई हैज ऑफिशियल डीलिंग विथ हिम और हर. क्लियर? ओनली इंटीमेशन इज नेसेसरी इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. यहां पर ऐसा कुछ ये नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है. तो नॉट करेक्ट पूछा है. प्रायर परमिशन इज नेसेसरी इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. ये एक्चुअली करेक्ट है. प्रायर परमिशन नेसेसरी. आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो प्रायर परमिशन जरूरत है, और सभी केस में नहीं, मगर यहां पर क्या है, पर्सन के साथ ऑफिशियल डीलिंग है और उसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो परमिशन तो जरूरी है. परमिशन इज नेसेसरी, यही एक्चुअली करेक्ट है. थर्ड वन करेक्ट है. तो दोनों इनकरेक्ट है. वो नॉट करेक्ट पूछा है. आप देख लीजिए रूल 18. रूल 18 में क्लियरली मेंशन है, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 रूल 18 में. तो वही नॉट करेक्ट मींस फर्स्ट दोनों, ओके, वो करेक्ट नहीं है. तो आंसर इज 2. आंसर इज 2, राइट. तो यहां पर एक ही लाइन आपको याद रखना है, पर्सन के साथ ऑफिशियल डीलिंग है तो उसके साथ बिना गवर्नमेंट परमिशन से हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी.
कोई भी प्रॉपर्टी का वैल्यू हो जाए, कोई भी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी के साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं मगर उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है तो बिना परमिशन से हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। यहां पर करेक्ट देखेंगे। नो एम्प्लॉय शैल ब्रिंग एनी ऑफिशियल इन एनी पॉलिटिकल और अदर इन्फ्लुएंस टू बियर अपन एनी सुपीरियर अथॉरिटी टू फर्दर हिज सर्विस मैटर्स। आप देख लीजिए अगेन सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 और रूल 20 आप देख लीजिए। सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 रूल 20 देख लीजिए, वो वही दिया है, नो एम्प्लॉय शैल ब्रिंग एनी पॉलिटिकल और अदर इन्फ्लुएंस। आप कोई भी पॉलिटिकल और एनी अदर इन्फ्लुएंस आप डाल नहीं सकते सुपीरियर अथॉरिटी के ऊपर कोई सर्विस मैटर रिलेटेड, कोई सर्विस मैटर में। ठीक है, आप कोई सर्विस मैटर का फायदा लेने के लिए यदि आप कोई पॉलिटिकल और एनी अदर इन्फ्लुएंस आप सुपीरियर अथॉरिटी के ऊपर आप डाल नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर वो चाहे करेक्ट दिया है, क्लियर, नो एम्प्लॉय शैल ब्रिंग, तो ये करेक्ट है। इफ इट हैपेंस फर्स्ट टाइम इट में बी इग्नोर्ड, यहां पर एक है, तो यदि आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो, आप जबरदस्ती सुपीरियर अथॉरिटी के ऊपर प्रेशर कर रहे हो कोई सर्विस मैटर्स में, यदि आप करते हो तो फर्स्ट टाइम आपको एक एडवाइस दिया जाएगा। ओके, फर्स्ट टाइम आपको एडवाइस दिया जाएगा, ठीक है, कि ये काम आप मत करो। फर्स्ट टाइम एक्चुअली एडवाइस शुड बी गिवन टू यू। इफ यू डिड फर्स्ट टाइम देन एडवाइस गिवन टू यू। बट इफ अगेन सेकेंड टाइम इफ इट इज रिपीटेड, यदि आप सेकेंड टाइम करते हो तो ये इग्नोर दिया है। इफ इट हैपेंस फर्स्ट टाइम इट में भी इग्नोर, ये तो करेक्ट नहीं है, इग्नोर नहीं होगा। यहां पर आप कोई हायर अथॉरिटी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, कोई सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आप डाल नहीं सकते, कोई पॉलिटिकल प्रेशर आप डाल नहीं सकते, एनी अदर इन्फ्लुएंस एक्चुअली यू शुड नॉट इंपोज ऑन सुपीरियर अथॉरिटी रिलेटेड टू द सर्विस मैटर्स। ओके, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको एडवाइस दिया जाएगा कि ये मत करो। ओके, ये एक मिसकंडक्ट है। सेकेंड टाइम कर रहे हो, यहां पर दिया है सेकेंड टाइम, इट हैपन सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम में रूल क्या है, सेकेंड टाइम कर रहे हो तो आपको रिटिन स्टेटमेंट में आपको दे दिया जाएगा और आपका बेसिकली सर्विस बुक में भी वो जो रिटिन आपको दिया गया वो भी मेंशन होगा। ठीक है, तो इफ इट हैपन सेकेंड टाइम रिकॉर्डेड वार्निंग में भी इशूड, यही दिया, ये भी करेक्ट है। रिकॉर्डेड वार्निंग में अभी बताया, फर्स्ट टाइम आपको एडवाइस दे दिया जाएगा ये काम मत करो, और सेकेंड टाइम ये रिपीट हो रहा है, again it is repeated for second time, then written warning given to you, and again actually it must be the written warning जो document है it must be kept in your service okay book। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों करेक्ट है, फर्स्ट वन एंड थर्ड वन। तो फर्स्ट थर्ड देखिए, ये 4 जो है आंसर 4 है, मैं टिक लगा दिया, आंसर 4 है। समझ में आ गया? तो रूल 20 यही बोल रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर आप सुपीरियर अथॉरिटी के ऊपर डाल नहीं सकते, कोई एनी अदर इन्फ्लुएंस यू शुड नॉट इंपोज ऑन सुपीरियर अथॉरिटी रिलेटेड टू द सर्विस मैटर। इफ यू डू इट देन फर्स्ट टाइम देन एडवाइस शुड बी गिवन टू यू, जस्ट यू डिवेयर योरसेल्फ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, एंड सेकेंड टाइम इफ इट इज रिपीटेड then written warning to be given to you, and then this written document also should be kept in your service book। ओके, तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, जो इग्नोरेंस दिया है सेकंड वो करेक्ट नहीं है, मैं क्रॉस लगा दिया, तो आंसर 4 है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। अगेन ये क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट दिया है, आर करेक्ट, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर दिया। नो एम्प्लॉय शैल स्पेकुलेट इन शेयर्स। स्पेकुलेशन इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। ओके, फ्रीक्वेंट दे दिया, फ्रीक्वेंट आप नहीं कर सकते, हाँ ऑकेजनली आप कर सकते हो, कोई ब्रोकर का हेल्प लेके ऑकेजनली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर फ्रीक्वेंटली आप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंट दे दिया, तो नो एम्प्लॉइज शैल स्पेकुलेट इन शेयर्स, तो ये करेक्ट है क्योंकि आप फ्रीक्वेंट यहां पर दिया है, फ्रीक्वेंट आप नहीं कर सकते, बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते, हाँ ऑकेजनली आप कोई ब्रोकर का हेल्प लेके आप कर सकते हो, मगर तो नो एम्प्लॉइज शैल स्पेकुलेट इन शेयर्स, स्पेकुलेशन इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंट यहां पर दिया है बाइंग, तो ये एक्चुअली करेक्ट है, आप कर नहीं सकते, फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, नो इंटीमेशन टू गवर्नमेंट इज नेसेसरी इफ द ट्रांजैक्शन इन शेयर्स डज नॉट एक्सीड 2 months बेसिक पे।
सपोज एक पर्टिकुलर टाइम में यदि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो 2 मंथ्स बेसिक पे, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है, ओके, डज नॉट एक्सीड 2 मंथ्स बेसिक पे, डज नॉट एक्सीड 2 मंथ्स बेसिक पे, तो यहां पर कोई इंटीमेशन का जरूरत नहीं है। कोई एक इंडिविजुअल केस में सपोज आप कोई, मैं अभी बताया ऑकेजनली आप कर सकते हो मगर फ्रीक्वेंटली आप नहीं कर सकते, तो इसलिए तो फर्स्ट करेक्ट लगाया। फर्स्ट है फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंट की जगह ऑकेजनली होता तो वो करेक्ट नहीं होता, क्योंकि ऑकेजनली हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड है यदि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन इन शेयर्स, और वो 2 मंथ्स बेसिक पे से ज्यादा हो रहा है, ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे, तब हम इंटीमेट करेंगे गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट को इंटीमेट करेंगे। मगर यहां पर नहीं दिया है, डज नॉट एक्सीड 2 मंथ्स बेसिक पे, नो इंटीमेशन, कोई इंटीमेशन का जरूरत नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। An employee needs to inform the government if the total transaction in shares in a year exceeds 6 months basic पे, टोटल ट्रांजैक्शन, जैसे आपका बाइंग सेलिंग जो आप कर रहे हो, टोटल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग ए ईयर यदि वो ग्रेटर देन 6 मंथ्स बेसिक पे, तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है, तो ये भी करेक्ट है। तो मैं थोड़ा सेकेंड को, फ्रीक्वेंटली आप नहीं कर सकते, तो फर्स्ट वन करेक्ट है। सेकेंड वन, आपका जो एक इंडिविजुअल, जैसे आप ट्रांजैक्शन इन शेयर, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो 2 मंथ्स बेसिक पे से ज्यादा नहीं है, तो कोई इंटीमेशन का जरूरत नहीं है। यदि 2 मंथ्स बेसिक पे से आपका जो बेसिक पे है उसका 2 मंथ्स बेसिक पे आप ले जाओ, उससे ज्यादा हो रहा है, आप जो ट्रांजैक्शन शेयर्स के ऊपर कर रहे हो उसका जो वैल्यू होगा मोर देन 2 मंथ्स बेसिक पे होगा, तो इंटीमेशन जरूरी है। और यहां पर डज नॉट एक्सीड 2 मंथ्स बेसिक पे, तो कोई इंटीमेशन का जरूरत नहीं है, तो ये भी करेक्ट हो गया। थर्ड वन क्या है, यदि होल ईयर में आपका जो ट्रांजैक्शन, जैसे बाइंग सेलिंग जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, यदि वो 6 मंथ्स बेसिक पे से ज्यादा है, ये टोटल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग ए ईयर यदि 6 मंथ्स बेसिक पे से ज्यादा है, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आंसर इज 4। आप रूल 18 देखिए, वही सीसीएस कंडक्ट रूल्स, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 रूल 18 देखिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ए मिसकंडक्ट, हम देखेंगे अंडर अगेन सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964। मिसकंडक्ट हम देखेंगे, टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द रैलीज एटसेट्रा ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, ये तो एक मिसकंडक्ट है। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी यू शुड नॉट, इट मीन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एनी टाइप ऑफ रैलीज, ओके। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से आप कोई रैलीज में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो यहां पर दिया है टेकिंग एक्टिव पार्ट, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो रैलीज में कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, तो ये मिसकंडक्ट है, तो वही पूछा, ये मिसकंडक्ट है, मैं टिक लगाया, ठीक है। तो आप देखिए, आप रूल 5 देख लीजिए, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 रूल 5 देखिए, रूल 5 में क्लियरली मेंशन है, आप कोई डायरेक्टली आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका रैली कर रहा है उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट वन, attempt to bring outside influence to bear upon any superior authority to further his interest in his service matter under government, अभी मैं बताया था। आप रूल 20 देखिए, वही सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, आप कोई सर्विस मैटर्स के लिए आप कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस आप सुपीरियर अथॉरिटी के ऊपर डाल नहीं सकते, क्लियरली मेंशन है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपका ट्रांसफर के लिए आप कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की एनी अदर इन्फ्लुएंस आप डाल रहे हो सुपीरियर अथॉरिटी के ऊपर, तो ये मिसकंडक्ट है, आप डाल नहीं सकते। तो यहां पर दोनों मिसकंडक्ट है, दोनों मिसकंडक्ट है, ओके। अटेम्प्ट टू ब्रिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस टू बियर अपॉन एनी सुपीरियर अथॉरिटी टू फर्दर हिज इंटरेस्ट इन ए सर्विस मैटर अंडर गवर्नमेंट, तो ये मिसकंडक्ट है, रूल 20 में क्लियरली मेंशन है, आप डाल नहीं सकते। एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और एनी अदर इन्फ्लुएंस यू शुड नॉट इंपोज ऑन सुपीरियर अथॉरिटी टू फुलफिल योर इंटरेस्ट रिलेटेड टू द सर्विस मैटर्स। एंड फर्स्ट वन क्लियर है, ऑन बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी यू शुड नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द रैलीज, राइट। तो ये दोनों मिसकंडक्ट है, तो बोथ आई एंड आई, आंसर इज बीट 3। बहुत बढ़िया, चलो क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। Which one of the following activities does not require prior permission? Does not require prior permission under CCS code। यहाँ पर prior permission का जरूरत नहीं है। To hold elective office in cooperative societies। cooperative societies में
आप कोई इलेक्टिव ऑफिस होल्ड करोगे तो यहां पर परमिशन चाहिए, यहां पर परमिशन का जरूरत है। टू एक्सेप्ट मेंबरशिप ऑफ बुक क्लब्स रन बाय फॉरेन एजेंसीज, यहां पर भी परमिशन का जरूरत है। ओके, एनी सपोज फॉरेन एजेंसीज रन द बुक क्लब, यू वांट टू एक्सेप्ट द मेंबरशिप, परमिशन का जरूरत है। टू सीक रिड्रेस इन कोर्ट ऑफ लॉ अबाउट कंडीशंस ऑफ सर्विस, इसके लिए परमिशन जरूरत नहीं है, यही आंसर होगा। इसके लिए कोई परमिशन जरूरत नहीं है। टू सीक रिड्रेस इन कोर्ट ऑफ लॉ अबाउट कोई कंडीशंस ऑफ सर्विस में आप कोर्ट ऑफ लॉ को जा सकते हो। ठीक है, कोई कंडीशन ऑफ ऐसा सर्विस है तो इस केस में आप कोर्ट को जा सकते हो। ठीक है, उसका रिड्रेसल के लिए। टू ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी, इसके लिए भी परमिशन का जरूरत है। तो आंसर आपको मिल गया, आंसर इज 3। ठीक है, तो एनी सर्विस सपोज कंडीशन मैटर में आप कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट का हेल्प ले सकते हो उसका रिड्रेसल के लिए। ठीक है, इसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। जो टिक लगाया वही आंसर है, वही दिया डज नॉट रिक्वायर परमिशन। तो टिक मार्क जो है टू सीक रिड्रेस इन कोर्ट ऑफ लॉ अबाउट कंडीशंस ऑफ सर्विस, इस केस में ठीक है कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। अदर 3 केस में परमिशन जरूरत है। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसकंडक्ट, अगेन आ गया, अगेन मिसकंडक्ट अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964। ट्रांजैक्शन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट विद ए पर्सन हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स, में बताया था ये एक मिसकंडक्ट है, क्योंकि आप एक पर्सन के साथ ऑफिशियल डीलिंग है, आप उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो विदाउट परमिशन से। आपको आप एक पर्सन के साथ ऑफिशियल डीलिंग है, आप उसके साथ कुछ ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का। और विदाउट प्रायर परमिशन you should not make any type of transaction with a person with whom okay the employee has official dealings, वही दिया है, ट्रांजैक्शन इन immovable property विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट विद ए पर्सन हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स, ये तो मिसकंडक्ट हो गया। ठीक है, वही पूछा है, मिसकंडक्ट पूछा है, तो ये तो मिसकंडक्ट है, टिक लगा दिया। नो रिपोर्ट, नॉट रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय फैमिली मेंबर आउट ऑफ हिज ओन फंड, यदि कोई फैमिली मेंबर उसका ओन फंड से वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, जैसे एक लैंड खरीद रहा है कि बिल्डिंग खरीद रहा है, ठीक है, उसका ओन फंड से, तो इसमें कोई रिपोर्टिंग का जरूरत नहीं है। तो ये मिसकंडक्ट नहीं है, ये एक मिसकंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि फैमिली मेंबर उसका ओन फंड से वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जैसे लैंड खरीद रहा है कि बिल्डिंग खरीद रहा है, उसका फंड से खरीद रहा है, तो उसको क्या जरूरत है गवर्नमेंट का परमिशन, प्रायर परमिशन, इसमें जरूरत नहीं है, कोई रिपोर्टिंग जरूरत नहीं है। मगर फर्स्ट केस में जरूरत है। आप एक पर्सन के साथ ऑफिशियल डीलिंग है और आप उसके साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको प्रायर सैंक्शन जरूरत है। यदि गवर्नमेंट प्रायर सैंक्शन, आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करोगे, गवर्नमेंट उसको सैंक्शन करेगा, तो आप उसके साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आंसर मिल गया, तो ओनली आई होगा, आई ओनली, आंसर इज बिट 3, तो मिसकंडक्ट ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अगेन ये भी रूल 18 में देख लिए, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 रूल 18 में है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, which of the following again misconduct related question under CCS conduct rules 1964, using official position to get employment to a family member, आप रूल 4 देखिए, CCS conduct rules 1964 रूल 4 में क्लियरली मेंशन है, आपका ऑफिशियल पोजीशन को लेकर आपका कोई फैमिली मेंबर को आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। ओके, ये तो मिसकंडक्ट है। ठीक है, ये मिसकंडक्ट है, टिक लगा दिया, ये मिसकंडक्ट है, क्योंकि आपका जो ऑफिशियल पोजीशन है उसका इन्फ्लुएंस से आपका फैमिली मेंबर को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो ये मिसकंडक्ट है। नेक्स्ट वन, टेकिंग लॉन्गर देन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम इन डिस्पोजल ऑफ ऑफिशियल वर्क, टेकिंग लॉन्गर देन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, ये भी मिसकंडक्ट है, क्योंकि जो रूल है, आप देखिए रूल 3 में क्लियरली मेंशन है, रूल 3 में क्लियरली मेंशन है कि द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड नॉट डिले द वर्क, ओके, इमीडिएटली कंप्लीट द वर्क एंड डीलिंग विद द पब्लिक इन टाइम। आप कोई भी पब्लिक का काम टाइमली करना है, जानबूझकर उसको डिले नहीं करना है। टेकिंग लॉन्गर देन द प्रिस्क्राइब, जो टाइम है, प्रिस्क्राइब टाइम है, उससे आप ज्यादा टाइम ले रहे हो कोई ऑफिशियल वर्क को डिस्पोज करने के लिए, तो ये तो मिसकंडक्ट है। तो दोनों मिसकंडक्ट है। आपका जो चेयर है, आपका जो पोजीशन है, ऑफिशियल पोजीशन है,
उसका इन्फ्लुएंस से आप आपका फैमिली मेंबर को जॉब दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, ये मिसकंडक्ट है। और जितना प्रेस्क्राइब टाइम है उससे ज्यादा टाइम ले रहे हो आप ऑफिशियल वर्क को डिस्पोज करने के लिए, ये मिसकंडक्ट है। तो बोथ आई एंड आई, आंसर इज बिट 3, राइट, आंसर इज बिट 3, राइट, रूल भी बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 अगेन यहां पर दिया है, इज और आर करेक्ट, करेक्ट ओनली देखना है। ए सस्पेंशन ऑर्डर विल नॉट बी वैलिड आफ्टर 90 डेज इफ इट हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू, ये करेक्ट है, क्योंकि आप 90 डेज के अंदर, आप जिस डेट में आप सस्पेंशन ऑर्डर आपको मिला उसी डेट से जो सस्पेंशन है वो कम इनटू फोर्स नहीं की, तो उससे 90 डेज के अंदर उसका रिव्यू होगा, और रिव्यू में डिसाइड होगा कि आपका सस्पेंशन पीरियड वो एक्सटेंड होगा कि नहीं। यदि 90 डेज के अंदर रिव्यू नहीं हुआ और 90 डेज क्रॉस हो गया, तब ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, वो इनवैलिड हो जाएगा, ये सस्पेंशन ऑर्डर वो वैलिड नहीं होगा। ये दिया है, सस्पेंशन ऑर्डर विल नॉट बी वैलिड आफ्टर 90 डेज इफ इट हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू। ठीक है, तो ये करेक्ट पूछा है, ये तो फर्स्ट वन करेक्ट है। ये सस्पेंशन ऑर्डर विल नॉट बी वैलिड आफ्टर 90 डेज इफ इट हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू, इट हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड दिया है, इफ इट हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू, ये सस्पेंशन ऑर्डर विल, अच्छा ठीक है, 90 डेज के अंदर रिव्यू हुआ, ठीक है, 90 डेज के अंदर रिव्यू हुआ और आपका सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड नहीं किया गया, तो 90 डेज के बाद आपका सस्पेंशन ऑर्डर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि 90 डेज के अंदर जो रिव्यू कमिटी है वो रिव्यू करेगा कि आपका सस्पेंशन ऑर्डर एक्सटेंड होगा कि नहीं। तो जो रिव्यू कमिटी है वो डिक्लेयर किया कि आपका सस्पेंशन ऑर्डर एक्सटेंड नहीं होगा, तो 90 डेज के बाद ऑटोमेटिकली ओके आपका जो सस्पेंशन ऑर्डर वो वैलिड नहीं होगा, ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन, where the recommendation of DPC has been kept in sealed cover, recommendation of DPC has been kept in sealed cover solely on account of pendency of the criminal case, the sealed cover may not be opened in case of acquittal of the employee if an appeal against acquittal has been filed in a superior court। यहां पर एक रूल है, एक्चुअली यहां पर एक चीज, जो क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन एक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि ये दिया है जैसे आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस चल रहा था, आपको वो क्रिमिनल केस से एक्विट कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। जब तक आपके ऊपर क्रिमिनल केस चला था तब तक वो जो रिकमेंडेशन ऑफ डीपीसी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी, ठीक है, जो रिकमेंडेशन था डीपीसी, आप जो कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर जो रिकमेंडेशन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी था वो सील्ड कवर में रहेगा, वो ओपन नहीं होगा। जो भी डीपीसी जो भी राय लिया आपके ऊपर प्रमोशन रिलेटेड मैटर में, वो सील्ड कवर में रहेगा जब तक आपके ऊपर क्रिमिनल जो प्रोसीज्योर चल रहा है। पर यहां पर है कि अभी आपको अक्विट कर दिया गया, ये रूल है, आपको अक्विट कर, जब आपको अक्विट कर दिया गया तब सुपीरियर कोर्ट को, इट मींस आपका अक्विटल अगेंस्ट में कोई चला गया सुपीरियर कोर्ट में कि आपको क्यों अक्विट किया गया, वो चैलेंज कर दिया, वो अपील कर दिया सुपीरियर कोर्ट में। जब सुपीरियर कोर्ट उसको स्टे करेगा, समझ में आ रहा है, सुपीरियर कोर्ट उसको स्टे करेगा, जो अपील किया गया आपका अक्विटल अगेंस्ट में, यदि उसको स्टे कर देगा तब जो डीपीसी का जो सील्ड कवर है, जो डिसाइड हुआ था डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी में, वो सील्ड कवर के अंदर है, वो सील्ड कवर ओपन नहीं होगा। मगर कब, जब सुपीरियर कोर्ट उसको स्टे कर देगा। यदि आप अक्विटल अगेंस्ट में सुपीरियर कोर्ट में अपील किया मगर उसको खारिज कर दिया सुपीरियर कोर्ट, उसको स्टे नहीं किया, तो स्टे नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आपका जो सील्ड कवर है वो ओपन होगा। मगर उसी चीज को यहां पर छोड़ दिया गया, यहां पर एक सेंटेंस होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट सुपीरियर कोर्ट हैज स्टे ऑन द अपील। यदि स्टे कर दिया तब ये सील्ड कवर ओपन नहीं होगा। यदि इफ द सुपीरियर कोर्ट हैज नॉट स्टे ऑन द अपील, देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो खारिज हो गया। खारिज होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो डीपीसी जो डिसीजन हुआ था डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में, वो सील्ड कवर में था, वो ओपन होगा। मगर वो चीज को वो नहीं दिया, तो इसीलिए मेरा जो राय है इस क्वेश्चन में, ये दोनों करेक्ट है, क्योंकि यहां पर नहीं दिया। जैसे आपको अक्विट कर दिया गया, मगर अक्विट करने से क्या हुआ, इसके अगेंस्ट में एक्चुअली सुपीरियर कोर्ट में अपील कर दिया गया। तो जब सुपीरियर कोर्ट में अपील कर दिया गया तो वो कैसे ओपन होगा,
अभी हम फिर देखेंगे स्टे किया ना स्टे नहीं किया, वो तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो ये मेरा मानना है कि दोनों करेक्ट होगा। फर्स्ट तो करेक्ट है मगर दोनों करेक्ट होगा। इसमें क्या डिफेक्ट है मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो मेरा हिसाब से आंसर बीट 3 होगा, मगर ये आंसर नहीं दिया गया है, ये ओनली करेक्ट दिया है स्टेटमेंट आई को, ओके। मगर मेरा हिसाब से बोथ आर करेक्ट होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज कैन सस्पेंड एन एम्प्लॉय। ये बहुत इजी है। कौन सा अथॉरिटी है वो एम्प्लॉय को सस्पेंड कर सकता है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कर सकता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कर सकता है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर नहीं। ये दोनों एक्चुअली अथॉरिटीज सस्पेंड एन एम्प्लॉय। ये बेसिकली सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965 का है। तो आपको याद रखना है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सस्पेंड कर सकता है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो दोनों करेक्ट है। तो यहां पर पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज, तो आई एंड डबल आई, आंसर इज 1, यही आंसर होगा, ठीक है। आंसर इज 1, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द पीरियड ऑफ सस्पेंशन शैल बी रेगुलराइज्ड एज ड्यूटी। जो पीरियड ऑफ सस्पेंशन था वो ड्यूटी में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जो सस्पेंशन पीरियड था वो उसको ड्यूटी माना जाएगा। इफ इट इज फाउंड दैट द एम्प्लॉय हैज बीन सस्पेंडेड बाय मिस्टेक, आपको जो सस्पेंड किया गया था बाद में पता चला वो मिस्टेक में आपको सस्पेंड किया गया था, तो जो सस्पेंशन पीरियड है उसको ड्यूटी माना जाएगा, क्योंकि बाय मिस्टेक आपको सस्पेंड कर दिया गया था और बाद में पता चला, तो आपका जो सस्पेंशन पीरियड है उसको ड्यूटी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, ये ड्यूटी कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसीडिंग्स रिजल्ट इन इंपोजिशन ऑफ माइनर पेनल्टी, यदि आपको सस्पेंड कर दिया गया और बाकी जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का कंक्लूजन मिला वो ओनली आपके ऊपर माइनर पेनल्टी लगा, तो हम जानते हैं जब माइनर पेनल्टी लगेगा आपके ऊपर तो आपका जो सस्पेंशन पीरियड है उसको ड्यूटी माना जाएगा। समझ में आया? जब माइनर, मेजर पेनल्टी होगा, जब मेजर पेनल्टी लगेगा तो आपका सस्पेंशन पीरियड ड्यूटी में कन्वर्ट नहीं होगा। मगर यदि डिक्लेयर हो गया कि माइनर पेनल्टी आपके ऊपर लगेगा तो वो जो सस्पेंशन पीरियड है उसको हम ड्यूटी मान लेंगे, तो ये भी करेक्ट है। देन द प्रोसीडिंग्स रिजल्ट इन एक्सोनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मींस जो कंक्लूजन आया डिसिप्लिन प्रोसीडिंग का, आपको एक्सोनरेट कर दिया गया, इसमें जो आपके ऊपर चार्ज लगा था वो फॉल्स हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका सस्पेंशन पीरियड क्या होगा, उसको ड्यूटी माना जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट को ड्यूटी माना जाएगा, तो आंसर 4 है। समझ में आ गया? बाई मिस्टेक में आपको सस्पेंड किया गया था, बाद में पता चला प्रोसीडिंग में, तो सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा। आपके ऊपर माइनर पेनल्टी लगा, यदि माइनर पेनल्टी लगेगा तो आपका सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा। और नेक्स्ट वन, यदि आपको माफ कर दिया गया कि आपके ऊपर जो चार्ज लगा था वो फॉल्स है, तो ऑटोमेटिकली आपका सस्पेंशन पीरियड को क्या माना जाएगा, ड्यूटी माना जाएगा। तो आंसर इज 4, तीनों करेक्ट है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। विद इन हाउ मेनी डेज द इंस्पेक्शन ऑफ लिस्टेड डॉक्यूमेंट शुड बी कंप्लीटेड इन टर्म्स ऑफ CCA rules 1965? Within how many days the inspection of listed documents should be completed? जो चार्ज ऑफिसर है जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है वो डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है विद इन हाउ मेनी डेज? 5 डेज, विद इन 5 डेज, ओके। मेरा एक टाइमलाइन वीडियो है भाई, CCA रूल्स 1965 एक टाइमलाइन वीडियो है, आप देख लीजिए, ठीक है। वो टाइमलाइन वीडियो में आप देख लीजिए, डिटेल्स है। तो आप चार्ज ऑफिसर विद इन 5 डेज में वो डॉक्यूमेंट्स को, लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। आंसर इज 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिए। व्हाट इज द टाइम पीरियड अलाउड टू ए चार्ज ऑफिसर टू सबमिट हिज स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इन रेस्पॉन्स टू द चार्जशीट? आपको चार्जशीट दिया गया, जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आपको चार्जशीट दिया, जो आपके ऊपर चार्ज लगाया गया है तो उसके ऊपर आपको चार्जशीट मिला, तो चार्जशीट का जवाब आप दोगे आपको डिफेंस करने के लिए, तो 15 डेज के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये भी एक्सटेंड हो सकता है, ये और 15 डेज एक्सटेंड होगा, मगर विथ ऑथेंटिक रीजन आपको देना है कि किस वजह से और 15 डेज आपको एक्सटेंड किया गया। ऐसा ही जो एक्सटेंशन है अप टू 45 डेज होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन अप टू 45 डेज होगा, आपको याद रखिए। फर्स्ट आपको 15 डेज दिया गया, तो नॉर्मली 15 डेज के अंदर आपको जवाब देना है। आपको कोई चार्जशीट मिला
तो आपको डिफेंस करने के लिए, आपको डिफेंड करने के लिए आपको ओके जवाब देना पड़ेगा. Okay, if you want to defend yourself, then you give the representation. So within 15 days, on which day actually you receive the charge sheet, from this day just you count 15 days. 15 डेज में जवाब देना पड़ेगा. और ऐसा कुछ सपोज आप नहीं दे पाए तो आपको रीजन देना है कि मैं इसी रीजन के वजह से नहीं दे पाया रिप्रेजेंटेशन, तो और 15 डेज एक्सटेंड होगा और वो रिकॉर्डेड होगा. डिसिप्लिन अथॉरिटी उसको रिकॉर्ड करेगा कि इसी वजह से वो 15 डेज के अंदर वो जवाब नहीं दे पाया. ठीक है, और ऐसे भी मैक्सिमम 45 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है, ज्यादा नहीं उससे. ठीक है, तो आंसर यहां पर मिल गया. आंसर इज 4. नॉर्मली 15 डेज के अंदर आपको जवाब देना है. क्वेश्चन नंबर 15. ए गवर्नमेंट सर्वेंट हुज डेट ऑफ इंक्रीमेंट इज 1 जनवरी. आपका जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है 1 जनवरी 2022, आइदर 1 जनवरी और 1 जुलाई. नहीं, सपोज यहां पर दे दिया है 1 जनवरी 2022, आपके ऊपर पेनाल्टी लगाया गया, इज इम्पोज्ड ए पेनाल्टी ऑफ विथ होल्डिंग. आपका इंक्रीमेंट को रोका जाएगा. आपके ऊपर जो पेनाल्टी लगा, आपका इंक्रीमेंट को रोका जाएगा. आपको ऑर्डर इशू हो गया 10 अक्टूबर 2021 में. मगर वो कब से इट मीन्स वो फोर्स होगा, ये जो ऑर्डर दिया गया. इन दिस केस पेनाल्टी शाल टेक इफेक्ट फ्रॉम. मैं समझा देता हूं. आपका इंक्रीमेंट 1 जनवरी में लगेगा और आपके ऊपर अभी ये एक माइनर पेनाल्टी, क्योंकि इंक्रीमेंट जो होल्ड होगा ये माइनर पेनाल्टी है. आपके ऊपर माइनर पेनाल्टी लगा. माइनर पेनाल्टी में क्या हुआ ना, इंक्रीमेंट को विथ होल्ड कर दिया गया. और तो ऑर्डर आपको मिल गया 10 अक्टूबर 2021 में आपको ऑर्डर मिल गया, मगर इट बेसिकली इट कम इनटू फोर्स. कौन सा डेट से ये फोर्स होगा आपको याद रखिए ना, जिस डेट में आपका इंक्रीमेंट है 1 जनवरी, वही 1 जनवरी 2022 से आपको याद रखना है. जिस डेट में आपका सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट डेट जो है, उसी डेट से एक्चुअली ये इफेक्ट होगा. ये जो विथहोल्डिंग इंक्रीमेंट है, ये जो ऑर्डर आपको मिला विथहोल्डिंग इंक्रीमेंट, वो कब से फोर्स होगा 1 जनवरी, वही 1 जनवरी जिस डेट में आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जनवरी 2022 से. आप इसको याद करिए. ठीक है, समझ में आया. तो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर 4 है. चलो क्वेश्चन नंबर 16 को चलेंगे. Which of the following may not be considered as imposition of penalty? सेंसियोर एक माइनर पेनल्टी है. ये एक माइनर पेनल्टी है. ठीक है. विथ होल्डिंग प्रमोशन, ये भी माइनर पेनल्टी है. ये भी माइनर पेनल्टी है. नॉन प्रमोशन आफ्टर कंसिडरेशन, आपका केस को कंसिडर किया गया मगर आपका प्रमोशन नहीं किया गया, ये एक्चुअली पेनल्टी नहीं है. और विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, ये भी माइनर पेनल्टी है. ओके, आप देख लीजिए सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1965, ये देख लीजिए. सीसीए क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965. आप पेनाल्टी के ऊपर रूल 11 है. पेनाल्टी के ऊपर रूल 11 में क्लियरली मेंशन है. ओके, सेंसियोर, विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, ये सब माइनर पेनल्टी है. मगर नॉन प्रमोशन आफ्टर कंसिडर द केस, ये एक पेनल्टी नहीं है. तो आंसर इज बिट 3. समझ में आ गया. तो आंसर बिट 3 हो गया. रूल 11 देखिए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965. ठीक है, रूल 11 में पेनल्टी के ऊपर है, माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी. टोटल 9 पेनल्टीज है. आप देख लीजिए, 5 पेनल्टीज माइनर में है और 4 पेनल्टीज मेजर में है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 को चलेंगे. अगेन दे दिया द टाइम पीरियड अलाउड टू ए चार्ज ऑफिसर टू सबमिट हिज रिप्रेजेंटेशन टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट. सपोज आपको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को इंक्वायरी रिपोर्ट मिल गया, तो वो इंक्वायरी रिपोर्ट वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आपको फॉरवर्ड करेगा चार्ज ऑफिसर को. तो चार्ज ऑफिसर को रिप्रेजेंटेशन देना है, वो कितना दिन के अंदर देगा. इंक्वायरी ऑफिसर क्या किया, इंक्वायरी रिपोर्ट दे दिया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को. जो इंक्वायरी रिपोर्ट दिया, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगा, वो रिपोर्ट को चार्ज ऑफिसर को भेजेगा कि आप आपका रिप्रेजेंटेशन दो. ये इंक्वायरी रिपोर्ट है, आप आपका रिप्रेजेंटेशन दो. वही दिया है. The time period allowed to a charged officer to submit his representation to the disciplinary authority on the inquiry report. जब इंक्वायरी ऑफिसर, ठीक है, जब आईओ इंक्वायरी ऑफिसर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को रिपोर्ट दे दिया, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगा, उसको किसको दे देगा ना, चार्ज ऑफिसर को दे देगा कि ये आप इंक्वायरी रिपोर्ट है, आप आपका रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो. तो कितना दिन के अंदर, भाई 15 डेज. कितने दिन के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन है, 15 डेज. तो चार्ज ऑफिसर को जिस डेट में
इंक्वायरी रिपोर्ट मिलेगा, उसका 15 डेज के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन देगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, अगेन 15 डेज। आंसर इज बिट 1। ठीक है, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following recoveries are obligatory from the subsistence allowance of a government servant under suspension? आप रिकवरी माने वो कंपल्सरी रिकवरी है, कंपल्सरी आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस से रिकवरी होगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, आप लोन लिया है तो वो रिकवरी होगा, कंपल्सरी रिकवरी होगा। आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या है ना, 50% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, इसका 50% आपको मिलेगा नहीं कि, तो यहां पर रिकवरी होगा, कंपल्सरी रीपेमेंट ऑफ लोन। इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये दोनों, जीपीएफ एडवांस, जीपीएफ एडवांस क्या है, आप जीपीएफ से, जनरल प्रोविडेंट फंड से जो ओल्ड पेंशन में आते हैं उनका जो जीपीएफ है वो एडवांस ले सकते हैं, और यदि उसको डेबिट किया जाएगा वो कंसर्न एम्प्लॉय का कंसेंट चाहिए। कंसर्न एम्प्लॉय कंसेंट देता है, हाँ मेरा सब्सिस्टेंस अलाउंस से इसको डिडक्ट किया जाएगा तब होगा, ये कंसेंट से होगा। मगर यहाँ पर रिकवरीज आर ओब्लिगेटरी, देना पड़ेगा, कंपल्सरी है, ये नहीं है। जीपीएफ सब्सक्रिप्शन, आपको जीपीएफ सब्सक्रिप्शन, आपका जो जनरल प्रोविडेंट फंड सब्सक्रिप्शन है, आपको देना नहीं पड़ेगा। ओके, आपको देना नहीं पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। रिपेमेंट ऑफ लोन, इनकम टैक्स, जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आते हो तो आपको मंथली आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, तो ये कंपल्सरी देना पड़ेगा। जैसे रिपेमेंट ऑफ लोन, आप लोन लिया है तो देना पड़ेगा, उसका जो इंस्टॉलमेंट है। इनकम टैक्स कंपल्सरी देना पड़ेगा। CGGIS, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस की, इसको देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का सब्सक्रिप्शन, उसको भी देना पड़ेगा। आपका जो लाइसेंस फी है, आप जो एकोमोडेशन का जो लाइसेंस फी है, ठीक है, आपका जो लाइसेंस फी है उसको भी देना पड़ेगा। ये सब कंपल्सरी है, देना पड़ेगा आपको। तो यहां पर दोनों मिल गया, वही है ओब्लिगेटरी, वो दोनों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिकवरीज आर ओब्लिगेटरी। तो आई एंड डबल आई करेक्ट वन, आंसर इज बिट 1 होगा। आंसर इज बिट 1, मैं बता दिया। कंपल्सरी में ये दोनों हो गया, CGGIS, CGHS, लाइसेंस फी, ये आपको कंपल्सरी देना पड़ेगा। अब देख लीजिए, मेरा वीडियो पड़ा है, ठीक है, और आप उसको देख लीजिए। और ये जो सब्सिस्टेंस रूल है ना, ये फंडामेंटल FR 53 में मेंशन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, यहां पर अगेन आ गया, is or are not correct, not correct. An official under suspension cannot work as defense assistant. Okay, ये तो करेक्ट नहीं है। An official under, जो सपोज सस्पेंडेड एम्प्लॉय, वो डिफेंस असिस्टेंट हो सकता है, वो और किसके लिए डिफेंस असिस्टेंट हो सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है। सस्पेंडेड एम्प्लॉय भी डिफेंस असिस्टेंट के आकार में काम कर सकता है, मगर यहां पर दिया है कैन नॉट वर्क, तो ये तो करेक्ट नहीं है। क्योंकि मैं क्या बताया, सस्पेंडेड एम्प्लॉय भी डिफेंस असिस्टेंट का काम कर सकता है, मगर कैन नॉट वर्क वो दिया है, ये तो गलत है। नेक्स्ट वन, सस्पेंशन ऑर्डर कैन नॉट बी इशूड विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कैन नॉट बी इशूड, ये तो करेक्ट है। सस्पेंशन ऑर्डर कैन नॉट बी इशूड रेट्रोस्पेक्टिव, माने एक्चुअली क्या है, जिस डेट में आपको सस्पेंशन ऑर्डर मिलेगा उसी डेट से वो सस्पेंशन ऑर्डर इट मींस कम इनटू फोर्स। जिस डेट, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, पहले से नहीं होगा, जिस डेट में आपको सस्पेंशन ऑर्डर मिलेगा उसी डेट से वो फोर्स होगा। तो वही दिया, सस्पेंशन ऑर्डर कैन नॉट बी इशूड। तो यहां पर नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट मींस में जिसको क्रॉस लगेगा ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, सेकंड वन करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर इज नॉट करेक्ट पूछा है मींस फर्स्ट वन। ओके, आंसर इज 3, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, अगेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अपील अगेंस्ट सस्पेंशन, हाँ अपील कर सकते हो आप, सस्पेंशन अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो, करेक्ट है। ए सस्पेंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट बी ग्रांटेड लीव ड्यूरिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन पीरियड में आपको लीव नहीं मिलेगा, तो ये भी करेक्ट है। सस्पेंशन पीरियड में आपको लीव नहीं मिलेगा और सस्पेंशन अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो, दोनों करेक्ट है। बोथ आर करेक्ट, आंसर इज विथ 4, राइट, बहुत इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, ये तो बहुत इजी है। फंडामेंटल रूल्स केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1922, 1 जनवरी 1922 जो फंडामेंटल रूल्स FR केम इनटू इफेक्ट, तो आंसर इज क्या है, 1 है, फर्स्ट वन है। चलो 22,
Which of the following rules of the fundamental rules, ये मेरा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए FR का भी 5 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट देखिए, which of the following rules of the fundamental rules FR provides that subject to certain exceptions the central government may delegate to any of its officers subject to any conditions it may think it fit to impose any powers conferred upon it by FRs। ये मेरा जो फिफ्थ पार्ट आप देखिए क्वेश्चन है मैं दिया था, ठीक है। तो ये FR6 कुछ एक्सेप्शन से अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में डेलीगेट टू एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स को डेलीगेशन पावर देता है कि कोई पावर को इंपोज करने के लिए। सर्टन एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस को आप कुछ मैटर्स में वो नहीं देगा, उसको छोड़ दो, मगर कुछ मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफिसर्स को देता है, ओके, वो कोई पावर को इंपोज कर सकता है, और ये FR6 में है। ओके, आंसर इज 3। आप देख लीजिए इसको भी, मेरा जो फर्स्ट पार्ट जो थ्योरी पार्ट है और जो MCQ का फिफ्थ पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग ए पोस्ट इन सब्सटैंटिव कैपेसिटी इज प्रमोटेड टू अनदर पोस्ट as per the provisions of relevant recruitment rules carrying higher duties and responsibilities his pay shall be fixed as per the provision of। सपोज आपको प्रमोशन आपको मिला, प्रमोशन मिलने के बाद आप हायर पोस्ट में जब जाओगे आपका वहां पर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगा, तो इसके हिसाब से आपका पे फिक्स होगा, नहीं कि हिज पे शैल बी फिक्स्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ। तो ये जो है ये क्लियर है, फंडामेंटल रूल 21 सबसेक्शन आई, देन जो आई है आई का सबसेक्शन ए और फर्स्ट वन, आंसर मिल गया 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप का प्रमोशन हो गया हायर पोस्ट में और आपका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगा, तो वहां पर आपका पे को फिक्स किया जाएगा, और वो क्लियरली मेंशन है फंडामेंटल रूल 21 सबसेक्शन आई सबसेक्शन ए सबसेक्शन 1। आंसर इज बिट 4। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन आ गया कि करेक्ट हम देखेंगे स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स दिया गया है। द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैज एब्सोल्यूट राइट टू रिटायर ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर FR 56J आफ्टर गिविंग ए नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 3 months और 3 months पे एंड अलाउंसेस इन लिeu ऑफ सच नोटिस। ये करेक्ट है, क्योंकि अभी जो FR 56J में क्या है, जैसे आपका सपोज ज्वाइनिंग लेस देन 35 ईयर्स, बिफोर 35 ईयर्स हुआ था, तो 50 एज के बाद पब्लिक इंटरेस्ट से गवर्नमेंट आपको रिटायरमेंट कर सकता है, आइदर वो 3 months नोटिस देगा और अदरवाइज 3 months का जो पे एंड अलाउंसेस आपको देगा, और आपको पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर कर सकता है। मगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली 35 ईयर्स के बाद ज्वाइन किया है और उसको 55 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट उसको पब्लिक इंटरेस्ट से गवर्नमेंट उसको रिटायर दे सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? आइदर 3 months नोटिस देगा, यदि 3 months नोटिस नहीं देगा, इमीडिएटली आपको रिटायर करना चाहते हैं तो आपको 3 months का पे एंड अलाउंसेस देगा। ये करेक्ट है, 56J में है, ठीक है। नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस ओनली आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर लेट डाउन इन आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी करेक्ट है। ये मेरा देखिए आप बेसिकली जो सस्पेंशन एक पार्ट है क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965, मेरा बेसिकली सस्पेंशन पेनल्टीज पार्ट देखिए, ये क्लियरली मेंशन है आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें कुछ प्रोसीजियर्स है, ठीक है। उस प्रोसीजियर को एक गवर्नमेंट सर्वेंट में बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, ओके, ओनली कुछ सर्टन प्रोसीजियर के बाद आपको डिसमिस किया जाएगा, क्योंकि डिसमिस होने से और एक बार आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, रिमूवल से मिलेगा। आपको रिमूव कर दिया गया तो और एक बार आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, क्योंकि सब मेजर पेनल्टी है। मगर आपको डिसमिस कर दिया और एक बार आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। और आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजियर है वो प्रोसीजियर को फुलफिल होता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस किया जाएगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट वन। आंसर इज 2, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टर्म्ड एज कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। कॉम्पेंसेटरी अलाउंस के ऊपर मैं थोड़ा बता रहा हूं, पहले मैं बता चुका हूं। कॉम्पेंसेटरी अलाउंस क्या है, सपोज कोई हार्ड एरिया में आप काम कर रहे हो तो आपको वहां पर आपको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलेगा, ठीक है। यहां पर ट्रैवलिंग अलाउंस को, ये तो सॉफ्टवेयर अलाउंस अबोलिश हो चुका है 7 पे में, ट्रैवलिंग अलाउंस को हम कॉम्पेंसेटरी अलाउंस बोलेंगे।
क्योंकि कोई टूर ट्रैवल, आप कोई टूर ट्रेनिंग आप जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपका ये होता है ना, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस दिया जाएगा। वो ट्रैवलिंग अलाउंस को हम कॉम्पेंसेटरी अलाउंस बोलेंगे। जैसे आपका जो डेली अलाउंस है, डेली अलाउंस, इस डेली अलाउंस ये भी एक कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है, डेली अलाउंस भी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है। तो यहां पर ट्रैवलिंग अलाउंस ओनली वन इज करेक्ट वन, बीट स्टेटमेंट आई इज करेक्ट वन, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, ये सब क्या है, कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चंस था। तो फिर और ये तो 100 क्वेश्चंस है ना, केवीएस प्रिंसिपल एग्जाम में आया था, तो ये फर्स्ट 25 क्वेश्चंस में डिस्कस कर दिया। जस्ट नाउ यू वेट फॉर द सेकंड पार्ट, ओके। सो प्लीज माय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel and like my channel, so that definitely you will get some interesting videos in subsequent time. Thank you and namaskar to all of you.